Hello, good morning. Am I audible? Hello, hello students. Good morning. Am I audible? Morning, sir. Yes, sir. Yeah. I hope you can see the screen also. Okay. Yes, sir. So after long gap, now we are here to continue our left topic. Okay. I think the last time in the last lecture, we had started with kinematics of rigid body. Okay, and I think we had completed 2 or 3 numericals, right? Am I clear? Yes, sir. आप लोग सुन पा रहे हो ना मुझे? Hello. Yes, Yes. So I hope now we all know the basics. Let me just एक बार थोड़ा सा फटाफट रिवाइज कराने दो. Kinematics of rigid bodies. Okay. Here we had a discussion on analyzing the what? Analyzing the general plane motion. Correct? General plane motion. Correct? मैं key points लिखता हूँ यहाँ पे. ठीक है? Analyzing the general plane motions. And we know that what is general plane motion. General plane motion is nothing but translation plus rotation. Correct? That means it is neither a pure translation nor it is a pure rotation. Correct? What we do normally, we assume this GPM. Okay, we analyze this GPM by considering as a pure rotation. What? Considering pure rotation. But for that, we know that rotation is always with respect to some fixed point. So here in this case, we have, since the body is translating as well as rotating at the same time. So here also we are trying to convert this into a pure rotation. And when we are trying to convert this into a pure rotation, that means it should be with respect to some point. And this point is an imaginary point, imaginary center of rotation, okay, which is called as ICR. Okay? What is ICR? ICR is nothing but instantaneous center of rotations. And what are the characteristics of this? What are the features of this instantaneous center of rotations? It is a point of zero velocity, correct? And instant to instant क्या होता है? Vary होते रहते हैं. Means body suppose at t1 is equal to 2 seconds. Okay, if it is having some uh, if it is having some kind of motions, which is of course a general plane motions, okay, and its orientations will be given to you. Okay, then you can find this t1 at t1 is equal to 2 seconds using this ICR. Again, if you try to observe at t is equal to, let's say, 8 seconds or 5 seconds, this body may be what changing some parameters, okay, or the body का जो GPM है will change with respect to its orientation, and accordingly this instantaneous center of rotation will change. So it can be was analyzed. It can be analyzed instant to instant. Okay, and then after this we seen how to locate ICR. Okay,
ICR लोकेट करने के लिए हमने 3 डिफरेंट केसेस देखा था, केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 क्या था, कोई बता सकता है? केस 1 में क्या होगा, वेलोसिटी दिया होगा, डायरेक्शंस, we define that to locate ICR only the directions of the velocities is sufficient. Am I clear to you? Hello? Hello? Am I audible? Yes. हाँ, तो ICR में what ICR locate करने के लिए हमको क्या चाहिए? Directions of velocities of any 2 points in the rigid body. So any 2 points are sufficient in the body. अगर उसका डायरेक्शन पता है तो हम ICR फाइंड कर सकते हैं। और एक बार हमको ICR मिल गया, then we can use this relation R into omega, just replace this R by a distance of that particular point from this ICR. Let's say you have point A and ICR here, so you will join this, you will get this distance IA, so this will represent your R. Okay, and one more point you should keep in mind is that ICR may lie within the body. Okay, may lie within the body or outside the body. Okay, outside the body. Are you getting me? So it will depend on the conditions. It will depend on the given mechanisms ka conditions. Is it clear to you? I hope you got it. आपको याद आया ना सब जो बताया था मैंने? And then after that we solved numericals. Okay, पहला न्यूमेरिकल हमने जो किया था, अगर आपको याद हो तो, let me show you. 4.2.1 वाला किया था, राइट ना? इसमें हमने देखा था कि ये लैडर जो है, इसका लैडर AB इज व्हाट, मूविंग ना, लैडर AB इज रेस्टिंग अगेंस्ट 2 सर्फेसेस. ओके, एंड उसमें से जो है पॉइंट A जो है इज मूविंग और पुल्ड टुवर्ड्स राइट. ओके, विथ सम वेलोसिटी दैट वाज गिवन 4 मीटर पर सेकंड. दैट मींस उसका डायरेक्शन हमको पता था. एंड we come to know that when A will move towards right, then at the same time B will perform its motion in the what, in the downward directions. Okay, along the surface. Okay, means depending on the moment of the point A, the point B will have its motions. That means we can have the directions of VA and VB here. Okay, these 2 points, and accordingly we located the ICR just by dropping the perpendiculars from that 2 points, correct? And where they intersected, that point is your ICR point, correct now? Are you getting me? That was something like this. Let me show you. That was something like this, correct? Hello? Not. Hello? That was something like this. Yes. And using this ICR, you found the what, velocities, angular velocities, and then last subsections was to find the velocity of point C. Okay, तो मिड पॉइंट का भी वेलोसिटी पूछा था. तो मिड पॉइंट के लिए हमने क्या किया था, we just joined the point I and C. Okay, and then after that we got a triangle, and जो अननोन था वहां से वो डिस्टेंसेस फाइंड आउट किया, एंगल्स फाइंड आउट किया, और फिर हमने v is equal to r omega का फॉर्मूला यूज करके determine here, correct? After that we solved this numerical, that is 4.2.3. I think I had given you this as a homework, right ना, if I'm not wrong. और इसका मैंने पूरा आपको लोकेट करके दिया था, हिंट भी दिया था हाउ टू सॉल्व. तो आई थिंक यू मस्ट हैव गॉट द आंसर्स. सबको आंसर्स मिला इसका? इस केस में क्या था, is piston C is constrained to move in a vertical slot. Okay, that means it can perform the motions in up and downward directions, and A and B moves in a horizontal surface. तो अगर ये C नीचे की तरफ आएगा
तो ए जो है राइट की तरफ जाएगा, ठीक है। सी ऊपर की तरफ जाएगा तो ए जो है लेफ्ट की तरफ आएगा। एंड एट द सेम टाइम दिस बी इज ऑल्सो कनेक्टेड, ओके। बी सी देख रहे हो ना, बी सी इज ऑल्सो, यहाँ पे दो जो है, दो रॉड है, एक ए सी है एक बी सी है। दैट्स वाई हियर AC is also performing a GPM and BC is also performing a GPM, correct now? So that's why when we try to locate the ICR, we come to know that here we will get the two different instantaneous center of rotations because of the two different bodies are performing the general plate motions, correct now? About the fixed this piston C, correct? Am I clear to you? So as this piston moves down, this point A moves towards the right, and at the same time point B towards left. Then point C, as it's moved in the upward directions, point A comes towards the left and point B come towards the right. Correct ना? Am I correct? तो यहाँ से ICR कैसे लोकेट किया था हमने? If you remember, VA was provided in the data 0.45 meter per second to the right, and we are asked to find velocity of C and B, and also find the angular velocity of two rods, correct? तो कैसे किया था, कुछ याद है आपको? Let me see here. See, something it was like that, correct? यहाँ से it is performing a upward motions and downward motions. तो इसका जो है ICR यहाँ पे इस लाइन पे कहीं पे तो आएगा, एंड देन ये जो है रॉड AC का वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, तो we just draw up a perpendicular from here and these two lines intersect at this some point and we say it is E. So this is what first ICR. Taking this ICR, we can find out the angular velocity of this rod AC and velocity of C, correct? And then using this velocity of C, we can find out the angular velocity of B just by locating the second ICR. By dropping the perpendiculars to the C and B, we will get the second ICR, and finally we can get the velocity of point B using the angular velocity of rod BC. Am I clear to you? Did you solve it? हेलो, Yes, sir. जिसने सॉल्व किया होगा उसको आंसर आया होगा, जिसने नहीं सॉल्व किया होगा उसको आंसर्स नहीं आया होगा, ठीक है। ऑफ कोर्स, तो आपको ये सॉल्व करना है खुद से। लास्ट टाइम सब स्टेप बाय स्टेप दिखा के दिया था, पॉइंट टू पॉइंट, ओके। तो सिर्फ आपको वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करना था और आंसर्स निकालना था, ओके। दैट यू कैन डू विथ योर ओन। नाउ दिस वाज अप टू द लास्ट टाइम का जो डिस्कशन हुआ था वो। Now we will start our today's lecture with this first numerical. Let's take this first numerical here. This problem number 4.2.8. Now this topic will be the part of your term test 2, okay? ICR वाला जो topic है ये आपका term test 2 में रहने वाला है. So this you start practicing, okay? Now problem number 4.2.8, I'm reading this. In the engine system shown, the crank AB has a constant clockwise velocity of 2000 rpm. This is actually referred as crank and slider mechanic. Okay, I'll just explain you. Just let me read this numerical first. So this is a crank. Crank AB is what? AB is called as a crank. This crank is what crank actually rotates, okay, with some angular velocity. It means it performs the rotations about this point A. As soon as this crank rotates, what happens? इसका rotations क्या होता है? इसको motion देता है, okay, क्योंकि crank से connected होता है, crank से connected होता है connecting rod with the help of this piston. This you can see piston, that is C. Here you can see for the crank position indicated, determine the angular velocity of connecting rod BD. Okay, actually that should be C, BC होना चाहिए, okay, C दिया है ना यहाँ पे, और that should be named as D. C के अंदर वो क्या हो रहा है, स्लाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट को D नाम दे दो आप। That this component which you can see is nothing but D, okay, piston. It is moving inside a guide, fixed guide, okay. And the velocity of the piston P we have to find, okay, that is
P or D, something like that. Okay, that is same. Okay, P C D जो भी बोलो वो पॉइंट सेम हो गया. ठीक है, आर यू गेटिंग मी? प्रॉब्लम समझ में आया आपको? देखो नहीं समझ में आया तो देखो यहाँ पे. से समझा. Let me draw this diagram first. See, इसमें जो आप देख रहे हो ये डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा आपको. ठीक है, ये ऐसा है. ठीक है, और सी यहाँ पे क्या होता है, ये क्रैंक होता है. दिस इज व्हाट हिंज्ड, हिंज्ड एट दिस पॉइंट. ओके, ये क्रैंक क्या होता है, रोटेट होता है. ओके, क्रैंक इज रोटेटिंग इन विच डायरेक्शन? कैन यू टेल मी? इट इज इन क्लॉकवाइज ना? Clockwise. या यू कैन टेक द क्लॉकवाइज डायरेक्शंस. ओके, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओमेगा के साथ, ओमेगा का वैल्यू दिया है आई थिंक. ठीक है, नाउ दिस क्रैंक व्हेन इट रोटेट्स, ओके, इसका रोटरी मोशन कन्वर्ट होता है रेसिप्रोकेटिंग मोशन. वो कैसे किया जाता है? यहाँ से एक कनेक्टिंग रॉड आता है. ठीक है, यहाँ से एक कनेक्टिंग रॉड आता है. जस्ट एक मिनट, यहाँ से एक कनेक्टिंग रॉड जाता है. ओके, कनेक्टिंग रॉड नॉर्मली थोड़ा बड़ा रहता है क्रैंक से. ओके, वो सब डिटेल का पार्ट आपको नहीं देखना है यहाँ पे. दैट इज पार्ट ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, दैट इज थ्योरी ऑफ मशीन्स. यहाँ पे नाउ ये जो आप देख रहे हो, ये ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट में दिस इज योर पिस्टन, यहाँ पे कनेक्टेड होता है. ठीक है, और ये क्या होता है, पिस्टन स्लाइड होता है. समझ में आ रहा है आपको? ये गाइड के अंदर स्लाइड होता है. एक तरह से आप इसको स्लाइडर बोल सकते हो. ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे सी, अभी क्या होगा, इसको पिस्टन बोलता हूँ पी. दिस पॉइंट इधर सी और डी जो भी नाम दो इसको. ठीक है, यहाँ पे एच पर डायग्राम, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी आई थिंक, एंड दिस इज योर पॉइंट डी. करेक्ट? ठीक है, अभी यहाँ पे और भी कुछ दिया हुआ है. क्या दिया है? ए बी का लेंथ दिया है, दैट इज क्रैंक का लेंथ दिया हुआ है, दैट इज 75 mm. ठीक है, एंड बी डी इज गिवन. ओके, दैट इज BD, और यू कैन से C. ओके, C भी दिया है. ऐसे सेमी पॉइंट है, वो एक ही है. ठीक है, नॉट टू वरी. ठीक है, नाउ जस्ट टेल मी व्हेन दिस क्रैंक विल रोटेट. ओके, तो क्रैंक रोटेट होने की वजह से क्या होगा, ये क्रैंक जब रोटेट होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा होगा? कैन यू टेल मी? एग्जैक्ट परपेंडिकुलर टू दिस. करेक्ट, परपेंडिकुलर टू दिस AB ना. ये AB हुआ आपका. ठीक है, ये आपका AB हुआ, ये एक लिंक हो गया. दिस इज A एंड दिस इज B. तो वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा होगा? ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इस पे परपेंडिकुलर होगा. राइट, बट वो किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? नीचे की तरफ होगा ना. दिस विल बी एग्जैक्टली परपेंडिकुलर. करेक्ट ना? आर यू गेटिंग मी? Yes, sir. Yes, sir. This will be the directions. Okay, तो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर में दिखा नहीं पा रहा हूँ, जस्ट अंडरस्टैंड. ओके, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री होगा. This will be the velocity का direction, that is VB. Okay, that means it is known to us. Okay, this is one thing. Now next thing, अब क्या होगा देखो, जैसे ये रोटेट होगा, इसका रोटरी मोशंस मैंने क्या बोला, कन्वर्ट होता है किसमें? रेसिप्रोकेटिंग मोशंस. क्योंकि ये क्या होगा, जैसे ही रोटेट होगा, ये कनेक्टिंग रॉड है. BD को हम बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड. दिस इज कनेक्टिंग रॉड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम. दिस इज क्रैंक एंड स्लाइडर मैकेनिज्म. इट इज कॉल्ड, दिस इज क्रैंक एंड स्लाइडर मैकेनिज्म, सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म. क्योंकि इसमें सिंगल स्लाइडर है, डबल भी होता है, डबल स्लाइडर डबल क्रैंक भी होता है. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है, ये AB जो है आपका क्रैंक है. ओके, BD जो है कनेक्टिंग रॉड है, और P जो है आपका पिस्टन है. D यू कैन सी स्लाइडर.
ओके, और यू कैन सी स्लाइडर के अंदर स्लाइडर गाइड, इसके अंदर वो यहाँ वहाँ होता है आगे पीछे, ठीक है। तो ये क्रैंक रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज एंड दिस कनेक्टिंग रॉड इज व्हाट कनेक्टेड टू दिस पिस्टन। तो इसका जो रोटरी मोशन यहाँ से आ रहा है, दिस इज कन्वर्टेड इनटू द रेसिप्रोकेटिंग मोशंस ऑफ दिस piston. Are you getting me? This means it will move like this. I hope you can imagine, right? This will move like this, correct? Now since it is moving here, okay, so connecting rod is what element which is what responsible for converting the rotary motions of this crank into the reciprocating motions. So connecting rod is what connected to the crank at one end, and at the other end it is connected to the piston. So यहाँ पे कौन सा दूसरा एलिमेंट है जिसका हमको वेलोसिटी पता है? कैन यू टेल मी? यस, ब्लॉक का। ब्लॉक का, करेक्ट, दैट इज पिस्टन का। दैट मींस ये देखो, ये क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, ऑब्वियसली ये क्या होगा, राइट की तरफ जाएगा, एंड दिस विल बी लेट्स से द वेलोसिटी ऑफ पिस्टन, दैट इज vp। तो ये हमको यहाँ से पता चल जाता है। ना मैंने क्या बोला था, कोई भी दो वेलोसिटी, कोई भी दो पॉइंट्स का अगर हमको डायरेक्शंस पता चला, मैंने बताया आपको, ये ध्यान में रखना, कोई भी दो पॉइंट्स का डायरेक्शंस पता चल गया काइनेटिक बॉडीज के अंदर, सॉरी बॉडीज के अंदर, रिजिड बॉडी के अंदर, तो आप ICR लोकेट कर सकते हो। दैट मीन्स नाउ यू शुड बी एबल टू हियर लोकेट द ICR। तो नाउ टेल मी कि अभी ICR कैसे लोकेट करें, बताओ, क्योंकि दो पॉइंट का डायरेक्शन VP और VP। करेक्ट, तो अभी दो पॉइंट तो हमें मिल गया। लेट मी जस्ट रब दिस फर्स्ट। Just a moment. Yeah. Now, what I will do, this I will first draw the perpendicular to this slider, correct? ये हो गया VP पे perpendicular. Now next what I will do, I will draw perpendicular to this second velocity जो मुझे पता है, that is I know the VB, तो VB पे मैं perpendicular draw करूँगा। तो जैसे मैंने दोनों पे perpendicular draw किया, देखो मुझे क्या मिला, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मिला ना। तो मैंने आपको हमेशा बोला है, ध्यान में रखना, अगर आपको दो पॉइंट का डायरेक्शंस पता है तो ICR आपके पास आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया पॉइंट I, एंड नाउ दिस यू कैन सी द ICR पॉइंट। इस ICR पॉइंट का सिग्निफिकेंस क्या होगा कि इट इज ए इमेजिनरी पॉइंट। क्या ये फिक्स रहने वाला है ICR हर वक्त? नो सर, चेंज विद रिस्पेक्ट टू द इंस्टेंट टू इंस्टेंट। तो जैसे जैसे ये परफॉर्म करेगा मोशंस, ओके। अभी मुझे बताओ यहाँ पे GPM कौन परफॉर्म कर रहा है? जनरल प्लेन मोशन। BD। यस, जनरल प्लेन मोशन कौन दे रहा है? BD दे रहा है। तो BD के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, I को ध्यान में रख के पेयर रोटेशंस कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। दिस मींस वी विल कंसीडर दिस BD, okay, this BD is performing a GPM, although it is performing a GPM, but we will consider the BD is performing a pure rotations about this I, correct na, about this I. Are you getting me? सर कैसे डिटरमाइन किया है रॉड BD का GP? क्या हुआ सर कैसे पता चला कि रॉड BD है GPM? यहाँ पे देखो ना, जब मैंने क्या बोला, ये यहाँ पे जब ये क्रैंक रोटेट होगा, ठीक है, क्रैंक इज व्हाट रोटेटिंग अबाउट दिस फिक्स पॉइंट, दिस इज अ प्योर रोटेशन, देन दिस स्लाइडर इज व्हाट मूविंग, करेक्ट, करेक्ट ना। दो पॉइंट का डायरेक्शन पता चला ना अपने को कि अगर ये यहाँ जा रहा है और ये रोटेशंस कर रहा है, इसका मतलब ये BD क्या है? BD is an intermediate link which is connected to the crank, okay। क्रैंक का रोटेशंस ये किसको दे रहा है? इसको दे रहा है, सो दैट इट इज रेसिप्रोकेटिंग। तो इसका रोटेशंस इसके रेसिप्रोकेटिंग में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मींस BD is simultaneously performing some kind of rotations, okay, and some kind of reciprocation, that is translations। हाँ सर, ओके। इन स्टार्टिंग में बताया।
चलो अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, बोलो। यस, अभी और कुछ दिया है प्रॉब्लम के अंदर? ये दिया है ना, ये एंगल दिया है ना, दिस इज व्हाट 40 डिग्री ना। हेलो, if this is 40 degree, can we find this angle? Yes, we can find na, in triangle ABP using sine rule. Using sine rule, what we can do? Just tell me which angle we want to find. This theta. Let's say this is theta. Let's say this is theta. Theta we want to find. Okay. So what we will do now? Now, just tell me. कैसे करेंगे? 25/2. 75 by sine of theta is equal to, yes, 200 by what? Sine of 40. Correct? No? Yes, sir. What will be the theta here? थीटा कितना आता है? थीटा कितना आता है? अरे इतना टाइम हो गया क्या? और मुझे सर 1 सेकंड से 1 मिनट। जल्दी करो। हाँ, ये टॉपिक आज एंड करना है। नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट विथ न्यू टॉपिक। हाउ मच इज दिस थीटा? एनीवन? 13.95. 13.9 9. If you're telling me the 3 digits तक, तो 3 digits भी चलेगा। और 2 digits तक बता रहे हो तो राउंड अप कर। 948. ठीक है, एक मिनट। हाँ ठीक है, अगर 948 दे रहे हो तो भी ठीक है, 13.95 दे रहे हो तो भी ठीक है। ओके, so this is theta. Once you got the theta, what you can do next? Tell me. See, ये थीटा आ गया, लेकिन अपने को ये एंगल से मतलब नहीं है। अपने को कौन सा एंगल चाहिए? ये वाला और ये वाला। अच्छा, ये वाला तो अपने को डायरेक्ट मिल जाएगा बिकॉज ये थीटा आ गया। तो लेट्स से दिस एंगल, ओके, दिस इज लेट्स से बीटा। इट इज व्हाट? बीटा। तो बीटा तो डायरेक्ट आ जाएगा, दैट इज 90 माइनस थीटा। कितना होगा बोलो? 76.052. 76.052। 2. ठीक है, तो दिस इज व्हाट योर बीटा। ये तो आ गया एक। अभी कौन सा बचा? यस टेल मी। अभी ये वाला बचा। अब ये वाला देखो, ये वाला भी आ जाएगा क्योंकि ये यहाँ से अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये 40 है, ये 90 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी 50 ना। ये 50 हो गया। ठीक है, ये 50 हो गया, ये थीटा हो गया, ये अगेन 90 हो गया। ये एंगल और ये एंगल प्लस करके 180 में से सब्ट्रैक्ट किया तो ये एंगल आ जाए, राइट। और डायरेक्टली इफ दिस इज 50 तो ये भी 50 होगा ना। ऑब्जर्वेशन से भी बता सकते हो, राइट? करेक्ट और नॉट? सी, एनी ऑफ दिस मेथड यू कैन फॉलो। आइदर ये वाला का कैलकुलेट करके ये 180 माइनस करो तो भी इतना ही आएगा, या फिर ये डायरेक्ट देखो, ये 50 है अगर तो ये भी 50 होगा। और ये अगर अपने को पता है, यस, और ये 50 है तो ये एंगल आ जाएगा आपको। ये वाला बताओ कितना आता है? लेट्स से दिस इज गामा। 53.948. 948 के। तो ये एंगल्स मिला सबको? हाँ सर मिल गया। एंगल्स मिल गए तो फिर कुछ नहीं करना है, फिर आपको वैल्यूज कैलकुलेट करना है। ओके, यू कैन इजीली डू दिस। नाउ व्हाट इज आस्क्ड इन द एग्जांपल? क्या बोला है, क्या फाइंड आउट करना है? सर ये 53.948 किसका कौन से एंगल का? ये वाला, ये ना, ये वाला गामा। ओके।
बी वाले साइड का ना? हाँ ये वाला, ये वाला, ठीक है ना, बराबर है ना, रॉन्ग है क्या कुछ? ऐसे बराबर है। बराबर है ना? नहीं सर बराबर है, बराबर है। बराबर है सर, बराबर है सर। बराबर है। ठीक है। अभी ये आपने लिख लिया ना, मैं ये अभी रब करता हूँ, ठीक है, ये साइड का, ये एंगल्स कॉपी किया ना सबने? हेलो, हाँ सर। एंगल्स आ गया सबको समझ में कैसे निकालना है? अभी नेक्स्ट, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ वीडियो। ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है देखो, आई बी पी, इन ट्रायंगल आई बी पी, ओके, अप्लाई द साइन रूल, अप्लाई साइन रूल। क्यों लगा वो साइन रूल? क्योंकि देखो एनीवे यू हैव टू आईपी, और ये आईबी तो लगने वाला है, ठीक है, तो वो निकालना पड़ेगा ना, तो इसके लिए मैं वो साइन रूल लगा रहा हूँ। तो आई बी अपॉन साइन ऑफ बीटा, ओके, बीटा कितना था, कितना था, 76 पॉइंट कुछ तो था ना, जीरो कितना था, 76.052, 052. हाँ, डिवाइड इज इक्वल टू, दिस इज आई बी, ओके, then it is equal to id ना, id upon what, sin of, हाँ gamma कितना था, 53.948. 53.948 is equal to, हाँ ठीक है ना, ये आईपी को चाहिए, तो क्योंकि आपने आईबीपी बोला है तो आईपी हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो बोलोगे डी कहाँ से आया। हाँ नेक्स्ट व्हाट वी हैव वीडी, ओके, वी 200 sin of 50, so now you can find ib and ip, tell me the value of ib and ip। कितनी आया 211.079। तो आवाज ब्रेक हो रहा है। आईपी कितना आता है? सी ये आंसर है, ये आता है। 211.079। ठीक, और दूसरा 253.4. एक मिनट, ठीक है, तो मुझे एक मिनट बता दो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। हाँ बोलो, आईपी कितना है? 253.38. 3.38 mm, और आईपी 11.079। 211.079। 079। Okay, what next? What next we will do? सर ओमेगा अमाउंट आई। हाँ, तो वीबी निकालना है ना, वीबी निकालना है, तो VB दिया है। वी कैन फाइंड ना, वीबी वी कैन डायरेक्टली फाइंड, दैट इज व्हाट, ओमेगा ऑफ ए बी इंटू AB दिस आई बी ना, तो दैट इज ओमेगा ऑफ ए बी इज हाउ मच, कितना दिया था ओमेगा ए बी का, यस बोलो, 2000 RPM। 2000 आरपीएम, ओके। अच्छा एक चीज ध्यान देना यहाँ पे, एक क्लॉकवाइज दिया है, 2000 आरपीएम भी दिया है, ठीक है, तो अपने को मीटर पर सेकंड में निकालना है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, रेडियन पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ रही है बात? multiply by pi divided by 1. हाँ, तो इसको आप आसानी से कर सकते हो, क्या करोगे, 2000 इंटू 2 पाई बाय 60, ठीक है, एक्चुअली दिस इज देखा जाए तो आरपीएम एन, यू नो दैट ओमेगा इज व्हाट 2 पाई एन, डिवाइड बाय 60 किया तो रेडियन पर सेकंड हो जाएगा, और डिवाइड बाय 60 नहीं किया तो रेडियन पर मिनट हो जाएगा। कितना आता है ये? 209.44. बराबर, तो ये वैल्यू यहाँ पे डालना, देखो बहुत बार होता है मिस्टेक,
घाई घाई में, ये ध्यान देना, मैं स्टार मार्क करता हूँ, ये आरपीएम में है, गड़बड़ गड़बड़ में एग्जाम में करना मत ऐसा। तो 209.44 इंटू आई बी इज 253.38 डिवाइड बाय सर 1000 इधर करूँ ए बी होना चाहिए किधर? सर, ये आई बी नहीं होना चाहिए, ए बी होना चाहिए। हाँ ए बी, सॉरी सॉरी, 1 मिनट, करेक्ट। तो 209.44 और ये कितना हो गया 75 ना, ए बी, दिस इज ए बी, यू करेक्ट इट, वेरी गुड। हाँ 75 डिवाइडेड बाय 1000 करूंगा क्योंकि ये एमएम में आ जाएगा, नहीं अगर मीटर पर सेकंड में चाहिए तो डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा। कितना आता है? 15.708। 15.708। हाँ 15 पॉइंट वाला जो है आंसर वो करेक्ट, 15.708 मीटर पर सेकंड, यही ना? यस सर। यस यस, सर। तो आ गया, दैट इज व्हाट वेलोसिटी ऑफ दिस, व्हाट वी कॉल वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी, ये पूछा था ना उसमें प्रॉब्लम में। सो दिस इज व्हाट योर फर्स्ट आंसर। नाउ सर एक नेक्स्ट, कैलकुलेशन वापस बताओ ना, क्या किया कौन सा? ये वाला वीबी का? वीबी में ये देखो, वीबी पॉइंट बी का वेलोसिटी निकालना है ना, तो पॉइंट बी का वेलोसिटी निकालना है, तो ये ए बी का जो है हमको रोटेशन पता है ना, रोटेशन परफॉर्म कर रहा है, तो अगर हमको इसका ओमेगा पता है ए बी का, और ए बी भी पता है, दैट मीन्स आर भी पता है, ओमेगा भी पता है, तो वी बी निकाल सकते हैं ना हम लोग पॉइंट बी का, ये तो फिक्स है। सर अगर ए फिक्स नहीं होता सर तो हम लोग वीबी माइनस वी करते सर फिर। ए फिक्स नहीं रहता तो फिर वो यहाँ पे फिर वो चेंज हो जाता ना, फिर नहीं कर सकते ना डायरेक्ट, फिर हमको कुछ तो दिया रहता था यहाँ पे कंडीशन, समझ में आया ना? ओके, सो अगर फिक्स नहीं रहता तो रोटेशन पॉसिबल ही नहीं होता। नहीं रोटेशन होता ही नहीं, बट ये क्रैंक और स्लाइडर मैकेनिज्म है, तो क्रैंक हमेशा फिक्स होगा एक पॉइंट पे, समझ में आया ना? क्योंकि क्रैंक ऑलवेज परफॉर्म्स रोटेशन, क्रैंक ऑलवेज परफॉर्म्स रोटेशन, समझ में आया? एंड दैट इज प्योर रोटेशन, ओके, प्योर रोटेशन। ओके सर। हाँ, तो इसका नाम याद रखो, दिस इज क्रैंक एंड स्लाइडर मैकेनिज्म, ये क्रैंक हो गया और ये स्लाइडर हो गया, क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड याद रखा तो भी चले। अभी नेक्स्ट क्या बोला है? तो अभी मैं ये निकाल दूं, आपका कॉपी हो गया ना ये? हाँ बोलो, अभी नेक्स्ट क्या निकालना है अपने को? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बीडी। हाँ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बीडी कैसे आएगा वो? कोई बताएगा? सर वी बी ओमेगा ऑफ आई इंटू आई बी। देखो बीडी इज परफॉर्मिंग जनरल सर प्लेन क्वेश्चन मोशन, रिपीट करोगे सर? देखो पॉइंट बी का वेलोसिटी पूछा था क्वेश्चन में, वो निकाल दिया। अभी नेक्स्ट क्या पूछा है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस बीडी ना, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बीडी कैसे आएगा? सिंस बीडी इज परफॉर्मिंग अ जनरल प्लेन मोशन अबाउट दिस पॉइंट आई, करेक्ट? यस। Sorry, it is not, it is performing a general plane motion, but it is converted into pure rotation about I, correct? So when you are saying GPM na, so GPM is what performed by the VP, but when you are saying the rotation should be always with respect to some point, okay? तो BD का GPM जो है हमने consider किया है rotation about this point I. Now we can we write VB is equal to omega of BD into R, and R is what? R is, yes आईडी। बोलो, yes वीपी। आई बी आई IB, यस आई बी। IB करेक्ट है? हेलो, यस सर, आईडी। हाँ, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी देखो यहाँ पे अपने पास सी
ना अपने को क्या है प्रॉब्लम में, अपने को ये बीडी भी पता है, ठीक है, दिस बीडी वी नो, करेक्ट, एंड वीबी भी अपने पास आ गया है, ठीक है, राइट ना? हेलो, यस सर। हाँ गेटिंग मी? हेलो, यस सर। can we write this as omega bd into, okay, omega bd into this bd? यस So no, हाँ सर। सर पहले आई भी क्यों लिखा था? that is also correct ना, that is also correct, but see, when we know this bd, okay, we can use this. अगर हम इससे जाएंगे, ठीक है, दिस आई बी वी आर कंसिडरिंग द पॉइंट बी जो है परफॉर्म कर रहा है रोटेशन अबाउट दिस आई, ठीक है, व्हेन वी कंसिडर दिस होल बी डी एज अ वन लिंक, ओके, तो वी कैन सी दिस इज व्हाट giving the point b का velocity when we see when we get this bd, okay, so we can get the point b का velocity just by multiplying the r, correct ना, because we have converted this into a rotation about point I, ठीक है, तो we can write this. हेलो, सर नो, आई बी होना चाहिए, बीडी कैसे होगा सर? क्योंकि वो रोटेशन आई के अबाउट हो रहा है ना, तो उसका परपेंडिकुलर अच्छा डिस्टेंस हाँ, आई बी मैंने होगा। मैंने यहाँ पे क्या दिखाया, मैंने बीडी दिखाई क्या? ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी, हाँ इट इज करेक्ट करेक्ट, सॉरी, हाँ सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, दिस शुड बी आई बी आई, यस, बीडी इज व्हाट, जीपीएम ना, जीपीएम है वो, करेक्ट। हाँ कितना आता है फिर ये वीबी? तो ओमेगा वीडी अपने को निकालना है, वीडी अपने पास कितना है, कितना आया था, 15.07, 708 708 और 07, 708 708 यस, या सॉरी, हाँ एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने वो गलत बताया आपको, ये यहाँ पे ये आई थॉट कि ये रोटेशन है, ओके, बीडी इज व्हाट परफॉर्मिंग जीपीएम अबाउट आया, तो दिस शुड बी आई बी, हाँ, या तो आई बी कितना था, आई बी कितना था? 0.2534 मीटर्स। मीटर्स में बता रहे हो क्या? यस सर, मीटर में 0.25, 34। यस, कितना आता है ये? आई बी कैसे आएगा? हेलो, हाँ कितना आता है? 61.99। 61.99, this is in what, radian per second? हेलो, यस सर, रेडियंस। आरपीएम में कितना आएगा वो कन्वर्ट किया तो? 61 होएगा तो 62 हो गया ना, या 62 करेक्ट, 62 जिनका आया है वो करेक्ट है, आरपीएम में दिया तो भी चलेगा, ठीक है, यहाँ पे आप आरपीएम में कन्वर्ट करना है तो भी कर सकते हो, तो आरपीएम में करने के लिए क्या करोगे, 60/2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, हाँ व्हाट नेक्स्ट, दिस इज योर नेक्स्ट आंसर हो गया। Did you get this? Hello, hello, यस सर। यस सर बात। velocity of piston कैसे आएगा अभी? सिंपल, जो भी डिस्टेंस है आईपी का, पी का, आई से, वो इनटू ओमेगा, अभी ओमेगा किसका आएगा वो बोलो? बीडी का ही। बीडी पीटी का ही आएगा, करेक्ट, पी का ओमेगा है आपका 61.99 इंटू आईपी कितना था?
0.21108 0.2 हाँ 1108. okay, so what is the answer? Let me check. 13.08. 13.079 हाँ correct ना 13 point 0. 85. 8. meter per second. This is the correct answers. So everyone please note this answer. Okay, I hope सबको समझ में आया ये भी, ठीक है। देखो यहाँ पे एक मिस्टेक होने जा रहा था, बट एक स्टूडेंट ने बराबर पॉइंट आउट किया, ये बी डी जो है हम गलती से कभी कभी वी बी इज इक्वल टू ओमेगा बी डी इंटू वी बी भी लिखा तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ये जीपीएम परफॉर्म कर रहा है जनरल जनरेशन, तो वी कैन नॉट राइट दिस डायरेक्टली। ओके, दैट्स व्हाई यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान देना, ठीक है। तो समझ में आया आपको ये प्रॉब्लम? हेलो सर शुड वी गो टू द नेक्स्ट? सबका हो गया कॉपी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, now next you will solve. Okay, I will just show you the problem. आपको मैं बता देता हूँ कौन सा करना है, and then you solve. अभी जरा प्रॉब्लम नंबर 4.2.6 देखो, इसमें क्या होता है, बहुत बार मिस्टेक्स होता है बच्चों का। कैन यू सॉल्व दिस 4.2.6? क्या है प्रॉब्लम? अगर आपने आईसीआर सही से लोकेट किया तो यू कैन, आप समझ जाओ कि आपने 50% प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, ठीक है। जिसको आईसीआर ही लोकेट करने नहीं आएगा वो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर पाएगा, समझ में आया? तो पहला नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है इस टॉपिक के लिए कि आपको आईसीआर कैसे लोकेट करना है वो अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लेना है। वंस यू गॉट द क्लियर आइडिया अबाउट द आईसीआर दिमाग में कि कैसे होता है, कहाँ पे आता है, कैसे लोकेट होता है, आईसीआर अंदर आ सकता है, बाहर भी आ सकता है बॉडी, सारा कंसेप्ट अगर क्लियर है आप, तो यू विल नेवर कंफ्यूज इन सॉल्विंग द कोई भी प्रॉब्लम्स दिया तो आप कर सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा फिर। तो खाली आपको मैकेनिज्म स्टडी करना है और उसके मोशंस को एनालाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है, और अकॉर्डिंगली आपको पॉइंट्स के मुताबिक आईसीआर लोकेट करके डिटरमाइन करना है। क्लियर टू यू? सो इसमें इतना ही है और कुछ नहीं। तो अभी प्रॉब्लम नंबर 4.2.6, what it is saying, due to slipping points A and B on the rim of the disk have the velocities as shown in figure. Okay, determine the velocity of the point P at the given instant. So you are not asked to find out the velocity of point B और C, सेंटर वगैरह का नहीं पूछा है। आपको किसका पूछा है? एक पॉइंट P है जो आपका at a distance of 0.5 meter है, okay, from the center, okay, with okay, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? 30 डिग्री है बॉडी का, उस इंस्टेंट पे वो फाइंड आउट करना है। तो ये क्लियर हुआ सबको क्या बोल रहा हूँ मैं? हेलो हाँ सर समझ। हाँ, तो आप अभी बताओ मुझे कैसे करोगे ये, पहले आइडिया दे दो फिर स्टार्ट करो। एक मिनट इसको ड्रॉ करने दो फिगर, तब तक आप सोचो। सर इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं क्या? ये बैकग्राउंड अच्छा नहीं दिख रहा है क्या? नहीं सर, नहीं कॉन्ट्रास्टिंग। मजा नहीं आ रहा। मजा नहीं आ रहा है? मजा क्या करना है इसमें? सर वाइट ही आती है। अच्छा राइट, हाँ अब ये ठीक है ना? हाँ अभी देखो यहाँ पे ये एक सेकंड, अच्छे से जाने दो, हेड में आने दो, ठीक है।
This is 30 ना, this is P, right? This is C, correct? ये क्या है? B है ना, करेक्ट है ना? देखो, हेलो, Yes. this is the direction of VB and this is the direction of, देखो ये इक्वल नहीं है, कम ज्यादा है, ठीक है? दोनों साइड में इक्वल नहीं है, ओके? ये कितना है? 1.5 मीटर पर सेकेंड और ये 3 मीटर पर सेकेंड। आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P। चलो बता दो कैसे करो। यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है सर्कल का, दैट इज 0.8 मीटर। CP का वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज 0.5 मीटर। ये निकालना है, ठीक है? यस, टेल मी। सर ICR पर ये वर्टिकली आएगा डायमीटर के अलावा। ऐसे कैसा आएगा, वही मेरे को जानना है। सर एक्सट्रीम ज्वाइन कर दो फिर। एक्सट्रीम को ज्वाइन करके फिर करेक्ट, वेरी गुड। एक्सट्रीम्स को ज्वाइन करके, राइट। देखो इसमें बहुत जन मिस्टेक करते हैं। उसका ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, सिमिलर ट्रायंगल से। यस यस, वो आगे का आप करो ट्राई। ओके, आई एम गिविंग यू द टाइम। पहले मुझे ICR देखना है कहाँ पे आए, ठीक है? तो आप एग्जैक्ट थोड़ा सा प्रोपोर्शनल डायग्राम बनाओगे ना, आपको एग्जैक्ट लोकेशन मिलेगा। लेट मी शो यू इफ आई हैव, एक मिनट, हाँ, मेरे पास होगा, एक सेकेंड। ये देखो आपका ICR कुछ ऐसा आता है, ठीक है? ये डायग्राम है, ओके? समझ में आया ना? यही है ना प्रॉब्लम? नहीं सर, अलग लग रहा है। हाँ, ये एंगल अलग है, ठीक है? वो जाने दो, बाकी का देखो। तो ये देखो यहाँ पे ये एक्सट्रीम एंड्स को ज्वाइन करोगे तो ICR ऐसा कुछ पॉइंट नीचे दिखेगा आपको। समझ में आया ना? ओके, Yes, sir. तो इसमें बहुत मिस्टेक्स क्या होता है कॉमन, कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये ICR बहुत जन लेते हैं, ठीक है? ये गलत है। 2 ICR कंसीडर करके सॉल्व कर, दिस इज रॉन्ग। ICR will be here, okay? Joining, after joining the extremities of these two velocity vectors, okay, that will be this. So this is your point I, okay? What next? अभी अभी क्या करोगे बोलो? अभी देखो एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है क्या? क्या दिख रहा है? एक ट्रायंगल दिख रहा है, एक मिनट। There is one triangle like this, okay? And this is your point. This is your point B. This is point पॉइंट B यही है ना? इसका पॉइंट का नाम क्या है? ये पॉइंट का B है क्या? सर इसका भी That is B. sir. This is B, okay. So this one is given or not given? उसको भी बी ही दिया है। ठीक है, चलेगा, जाने दो। ओके, ये B हम कंसीडर करते हैं, वैसे भी वो पॉइंट का जरूरत नहीं है हमको, ठीक है? नाउ C is here ना, C is here, okay, at the center, ठीक है? और I किधर आ रहा है हमारा? थोड़ा सा नीचे आ रहा है, ठीक है? तो अभी हम I पे फोकस करते हैं, ओके? जस्ट अ मिनट। I हमारा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है? लेट अस सपोज ये यहाँ पे कहीं पे आ रहा है, पॉइंट C से थोड़ा नीचे आ रहा है ना, तो पॉइंट C से थोड़ा नीचे है, ओके? ये ऐसा आपको ट्रायंगल दिखेगा, ठीक है?
करेक्ट ना? This is 3, this is 1.5. Yes. Let's say this is what? This is IA na? This is point I. तो IA and this is IB. Correct? तो ये हम निकाल सकते हैं. Can we determine this? This by similar triangles. Am I clear? By similar triangles, what we can have? क्या लिख सकते हैं हम लोग? बोलो. IA upon, yes, 1.5 is equal to, correct है ना? This total is what? How much? The Total is diameter how? That is 1.6. So this will be 1.6. So I think this is this much is what? 1.6 minus what? IA, correct ना? IA. Upon 3. तो IA यहाँ से निकल आएगा. IA आ जाएगा तो IB भी आ जाएगा. तो IA and IB बता दो कितना आता है. How much is IA? Yes. Do it fast. 0.53 और 1.07. 0.533 ना मीटर और ये 1.0767 meters. ठीक है. Once you got this, what do you do next? Yes. Next क्या करोगे? बोलो. I निकालेगा. हाँ? About I. Sorry. I square. Omega sir. हाँ ओमेगा चाहिए. ओमेगा कैसे आएगा? Omega is equal to, you can have VB upon IB either, or you can have V upon I. Both are same because omega is constant ना. Correct ना? तो ओमेगा कितना आता है? If I am taking this 3 and this IB or I, let's say 3 देता हूँ. I का कोई भी एक ले सकते हो आप. जस्ट वैल्यू बता दो कितना आता है. Yes. How much is omega? 2.812. 0.842. Correct ना? Radian per second. 1 आता है क्या? हाँ. Okay. I have this 2.842. 3 upon 1.067. करो ना कितना आता है? This is 3 ना. VB is 812 ही आता है. उतना ही आता है क्या? 2.842 ही आता है. नहीं 2.811 आता है. हाँ ओके. मतलब 2.812 आता है ना? हाँ अब सही. हाँ 2.812 बराबर. सॉरी 842 नहीं है. 2.812 ही है. राइट. हाँ अभी क्या करोगे नेक्स्ट? अभी आपको फाइनली क्या चाहिए? पी का चाहिए ना, वेलोसिटी. तो पी के लिए क्या करना पड़ेगा? आईपी निकालना पड़ेगा. राइट ना? करेक्ट. आईपी कैसे निकालोगे? यस. जस्ट टेल मी. आईपी कैसे निकालोगे? सी पॉइंट कहीं पे यहाँ पे आएगा. ठीक है. सी पॉइंट यहाँ पे कहीं पे आएगा. सी विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.8. ठीक है ना?
और ये रेडियस I, माइनस I हाँ सी, अगर ये पॉइंट I ज्वाइन करोगे इससे तो ये आपको एक ट्रायंगल मिल जाएगा, क्योंकि आपके पास IC आ सकता है, ओके, IP आप निकाल सकते हो, CP दिया है, तो इन ट्रायंगल ICP, okay, you may apply, see you know the angle, one angle and two sides, you may apply cosine rule, correct है? ऐसा नहीं है कि यही रास्ता है, और भी रास्ते हो सकते हैं, ठीक है, this is one of the method. So in triangle ICP you can apply cosine rule and you can get the IP, okay, can you do this? Hello, हाँ सर। तो ये देख लेना, ये ट्राई करो कितना आता है IP, okay, and then tell me the value of VP, okay, fine. So we'll see this in the next lecture, जो आज ही है 12:30 पे, ओके, तो विल डिस्कस इट, तब तक फाइंड करके रखो, देन हम देखते हैं, ओके। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल वाइंड अप दिस टॉपिक, ओके, एंड देन विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक, ठीक है, और एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करके फिर वाइंड अप करेंगे, ठीक है, तो ये आप कर सकते हो ना? हेलो, यस सर। so come with your answers, okay, we are meeting at 12:30 again, okay, so just wait, let me take the attendance and then I will leave, okay. Sir, by 12:30 we have physics lecture. हाँ, तो मैडम ने उस दिन मेरा लेक्चर दिया था ना, But sir, have you talked with Supriya ma'am, because she messaged that the lecture will be held on time. okay, I will talk with her, and if she is ready I will conduct, if she is not ready then also it's fine, okay, because हमारा टॉपिक तो हो ही गया है and we are going to start the new topic, so मैंने सोचा था आज एक और दो और न्यूमेरिकल हो जाते थे इसके, तो थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाता था, अदरवाइज अगर नहीं हुआ तो फिर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ओके, अभी तो हमें काइनेटिक्स में जाना है, काइनेटिक्स हो गया, ठीक है, राइट। So I will talk with her, okay, if she is ready I will take, otherwise if she is not ready so we will meet in the next session, जो भी रहेगा as per regular time. एक सेकंड रुक सकते हो ना, एक सेकंड रुको बस। Okay, so I have taken the attendance, now you may leave, okay, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.